આજના કાર્યક્રમમાં આગળ વધતા સંઘ ગીતની એક પંક્તિ છે, જલતે જીવન કે પ્રકાશ में अपना जीवन तिमिर हटाए, उस दधीचि की तपह ज्योति से एक एक कर दीप जलाए। આજે આ પાવન પ્રસંગે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે ડૉક્ટર જયંતિભાઈ ભાડેસિયા. તેમના જીવનની સાચી ઓળખ છે કે તેઓ માત્ર દર્દીઓના શરીરને જ નહીં પણ સ્વયંસેવકોના મનને અને સમાજના હૃદયને પણ અને રાષ્ટ્ર જીવનને પ્રેરણાથી આરોગ્યવાન બનાવે છે. હું માન્ય ક્ષેત્રીય સંઘચાલકજીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ અતિથિ ઉદ્બોધન આપી આપણને સૌને માર્ગદર્શિત કરે. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના શતાબ્દી વર્ષ દરમિયાન જ દિવંગત પ્રચારકો જેણે ગુજરાતમાં ખાસ કરીને કામ કર્યું એમના જીવન વિશે પ્રેરણા પુંજ પુસ્તકના વિમોચન કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આપણા વરિષ્ઠ પ્રચારક અને અખિલ ભારતીય કાર્યકારિણીના સદસ્ય માન્ય સુરેશજી સોની, ગુજરાત પ્રાંતના સંઘચાલક ડૉક્ટર ભરતભાઈ પટેલ, મહાનગર સંઘચાલક ડૉક્ટર મહેશભાઈ, સાહિત્ય સાધનાના શ્રી રસિકભાઈ ખમાર, જે પ્રચારકોના જીવનની વાતો આપણે સાંભળી અને વાંચવા પણ જવાના છીએ, એમના સૌ પરિવારજનો, સંઘ અને સમવિચારી સંગઠનના સંકળાયેલ સૌ કાર્યકર્તા અને અન્ય બંધુ ભગિની. ભારત માતા બહુરત્ના વસુંધરા છે. દુનિયાભરમાં જેટલી મહાન વ્યક્તિઓ થઈ હશે એની ગણતરીની અંદર કરવા જઈએ તો ભારતની સંખ્યા કદાચ આપણે ગણી પણ ન શકીએ. આવા જ દેશ, ધર્મ અને સંસ્કૃતિ માટે કામ કરનાર 100 વર્ષ પહેલાં જેની સ્થાપના થઈ, જેની શરૂઆત કરી એવા સૌ પ્રથમ પ્રચારક કહીએ, આદ્ય સરસંઘચાલક કહીએ એવા ડૉક્ટર હેડગેવારની પરિપાટીમાં એમની હારમાળામાં ચાલનાર અસંખ્ય પ્રચારકો આ સંઘ કાર્યને આજે 100 વર્ષની યાત્રામાં પહોંચાડ્યું છે. આવી આ યાત્રાની અંદર મધુકાંતભાઈએ જે યાદ કર્યો ને, સંઘ કિરણ ઘર ઘર દેને કો, એક નાગપુરમાં વવાયેલું નાનું બીજ સમગ્ર બધી જ જગ્યાએ પહોંચે એ માટેનું જે કાર્ય ભગીરથ કાર્ય થયું, એ ભગીરથ કાર્યનો એક એક દીપક જુદી જુદી જગ્યાએ લઈ જઈને ત્યાં અનેક દીપકોને પ્રગટાવવાનું જે કામ કર્યું છે, એવી જ એક પરંપરા જેનું નામ પણ પછી જ થયું, એવી પ્રચારક પરંપરાના થોડા લોકોનું આપણા જીવન એના વિશેનું પ્રેરણાપુંજ પુસ્તક વિમોચન થયું. એક વખત સંઘચાલક વર્ગ હતો ગુજરાતનો, એમાં દક્ષિણ મધ્ય ક્ષેત્રના સુબ્રમણ્યમ શાસ્ત્રી કરીને સંઘચાલકજી આવ્યા હતા અને સંઘચાલકોની વાત કરતાં કરતાં એમણે એક કહ્યું હતું કે સંઘચાલક ઇઝ એન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ વિથિન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. તો મને લાગે છે એ શબ્દને આજે એક ફરી કહેવાની ઈચ્છા થાય છે કે પ્રચારક ઇઝ એન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ વિથિન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. સંઘની અંદર જે કાર્યકર્તાઓના પ્રકાર છે એ માહેના સુરેશજી કેતકરજીના પુસ્તક છે, એની અંદર પ્રચારક માટેની જે વાત છે આપણે બધા જાણીએ છીએ. આપણે જાણીએ છીએ એટલું નહીં, સમાજના લોકો પણ જાણે છે કે તમારા સંઘના પ્રચારકોને એટલે ફક્ત ભગવા વસ્ત્રો નથી પહેર્યા, પરંતુ સમાજ માટે, ધર્મ અને સંસ્કૃતિ અને રાષ્ટ્ર માટે જે સમગ્ર જીવન આપ્યું છે એવા લોકો છે. સંન્યાસીઓને તો કદાચ આશ્રમો હશે, એવો હિમાલયની અંદર જઈને બેસીને તપશ્ચર્યા કરી શકતા હશે, એ પોતાના આત્માનું કલ્યાણ માટેની કંઈ વાત કરી શકતા હશે, પણ સંઘના પ્રચારકો તો સમાજ વચ્ચે જ રહે છે, પરિવારોની જ સાથે રહે છે, એમની સાથે જ હળે મળે છે. એમના જેવા જ બધા પ્રસંગો અનુભવતા આવું કામ કરવું એ કેટલું અઘરું હોય છે અને છતાં એને સરળ બનાવે છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ સંઘની જે એક પરિપાટી રહી, એ પરિપાટી ડૉક્ટર હેડગેવાર જન્મ શતાબ્દી સમિતિ વખતે દિલ્હીમાં એક પત્રકારે કહ્યું હતું, સંઘ હેઝ પ્રોડ્યુસ સો મેની પીપલ બટ ઓલ આર ફેસલેસ.
તો કદાચ સંઘચાલકનું તો નામે ક્યાંક આવતું હશે. આજકાલ અનેક વિભાગો એવા છે, તો પ્રચાર વિભાગથી માંડીને બાકીના બધા કાર્યકર્તાઓ ક્યાંક ક્યાંક દર્શિત થતા હશે, પરંતુ પ્રચારક તો એવી વ્યક્તિ છે કે જે બધું જ કામ કરતી હોવા છતાં જ બધાથી દૂર, જેને આપણે કહેવાય ને પડદા પાછળ રહીને કામ કરનાર, એવા પ્રચારકોની અહીં વાત કરવામાં આવી છે. કોઈ પણ એક જે ઇમારત ચણાતી હોય છે ત્યારે એની ચણાયા પછી એની દિવાલો દેખાય, એનો રંગ દેખાય, એના ઉપરના ઘુમ્મટ દેખાય, ગુંબજ દેખાય, ઉપર ફરકતી ધજાઓ પણ દેખાય, એની ભવ્યતા પણ દેખાય. પરંતુ એના પાયામાં જેણે કામ કર્યું, જેણે આખું બધું વજન ઝીલ્યું છે, એવા પથ્થરો બહુ ઓછા દેખાતા હોય છે. એવા પથ્થરોની હારમાળામાં રહેલા પ્રચારકોની અહીં જ વાત છે. રાષ્ટ્ર માટે પોતે જે સ્વીકારેલું છે કામ નિષ્ઠાથી પૂર્ણ કરવા માટે પોતાના પરિવારને છોડીને સમગ્ર દેશને પોતાનો પરિવાર બનાવવો, એવા પ્રચારકોની વાત એ આમાં આપણે વાંચવા જનાર છીએ. કેટલાય તો એવા હશે કે જેણે એક હાકલ કરી અને નીકળી પડ્યા. અમે વસંતરાવજી ચીપલુણકરની વાત કરી, તેમણે કહ્યું હું તો મુંબઈ ભણવા ગયો હતો, અને અનંતરાવજીએ કહ્યું કે ભણવું જ છે તો અહીંયા આવી જાય ને, અહીંયા ભણીને પ્રચારક તરીકે કામ કર. અને સંઘનું કામ કરતાં કરતાં એક હાકલ કે હોસ્ટેલમાંથી પોતાના બેગને પણ ઘરે મૂકવા ન ગયા, પોતાના રૂમ પાર્ટનરને કહી દીધું અને ઘરે કહી દીધું કે મારા બાકીનો સામાન ત્યાંથી લઈ જજો, હું ગુજરાતમાં કામ કરવા જાઉં છું. આવી રીતે પોતાના જીવનને સર્વસ્વ અર્પણ કરવું, એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો પોતાનો સ્વાર્થ ન હોય, એવા પ્રચારકોની હારમાળા સર્જાય. અને એ હારમાળાના કારણે આજે આપણે સંઘનું એક ન ફક્ત ભારત પરંતુ વિશ્વની અંદર જેનું નામ થયું છે, જેને જાણવા માટે, જેને સાંભળવા માટે, જેને સમજવા માટે અનેક લોકો આજે તલપાપડ થઈ રહ્યા છે. કવિ દાદ એક કાવ્ય લખ્યું છે. કાવ્યની અંદર પથ્થર છે એ ઘડવૈયાને કહે છે, ઘડવૈયા મારે ઠાકોરજી નથી થાવું, જેના માથા મસાણે ધડ ધીંગાણે એના પાડિયા થઈને પૂજાવું. પથ્થરને ભગવાનની મૂર્તિ નથી બનવું, પરંતુ પાડિયા બનવું છે. પાડિયા પણ કોના? કે જેણે ધર્મ માટે, રાષ્ટ્ર માટે કામ કર્યું એના. પરંતુ સંઘના પ્રચારકોની વાત આવે ને ત્યારે તો અહીંયા પથ્થર જેવી પણ ઈચ્છા નથી કે અમારે કંઈ પાડિયા બને. આમાં જે પુસ્તક થયા ને એમાં પણ દિવંગતોના વિશે થયા છે. એમાંથી પણ જો કોઈને ખબર પડે તો અત્યારે અહીંયા આવીને કોઈનો કાન પકડે, અમે આના માટે કામ કર્યું હતું કે તમે અમારા પ્રસંગો વર્ણન કરો. આવી જે ભાવનાથી કામ કર્યું છે. પ્રસંગો તો ઘણા બધા છે, પ્રસંગો બધા વાંચશે ત્યારે એમાં પોતાપણું લાગશે. વાંકાનેરની મારી વાત કરી, હું 7મા ધોરણમાં સંઘની શાખામાં જવાનું શરૂ થયું. એ વખતે નટવરસિંહજી આવતા, હું તો એકદમ નાનો, મારા ઘરમાં ખાટ ઉપર બેસીને મારી યારે વાત કરે. મારા દાદીમાં કે આ મોટી ઉંમરના દાદા તારી યારે શું વાતો કરે છે. એ વાત, અને હું ડૉક્ટર થયો, સંઘચાલક થયો, એવો પોતાના બીમારીના છેલ્લા એમ કહેવાય ને દિવસો હતા. ડૉક્ટર વલ્લભભાઈ કથિરિયાની હોસ્પિટલમાં હતા ત્યારે એમ કહે છે, તમે તો સંઘચાલક છો, તમે તો ડૉક્ટર છો, તમે કહો ને અહીંથી મને હોસ્પિટલથી કાર્યાલય લઈ જાય. એક બાલ સાથે પોતાનું જીવન ગાળનાર એ પ્રચારક, આજે એ જ પ્રચારક એક સંઘચાલકને કેવી રીતે જુએ છે. તો કોઈ પ્રચારકોએ વ્યક્તિના પોતાના સ્વયંસેવક બનાવવા સુધીની એમના પરિવારોની પણ કેટલી કાળજી લીધી. એ કાળજી કે પરિવારની એક દીકરી સાસરે જાય તો એ સાસરે ગયેલી દીકરીને પણ ત્યાં મળવા જવું, અને ત્યાં ઘટના ઘટે, એ દીકરીનું અવસાન થાય, શંકાસ્પદ અવસાન થાય, ત્યારે સામાન્ય રીતે બે પક્ષોમાં એક એવું વાતાવરણ થાય કડવાશ ભર્યું. ત્યારે કડવાશ ભર્યું વાતાવરણ દૂર કરવામાં પ્રચારકનો કેવો રોલ હોઈ શકે.
એટલું જ નહીં, પરંતુ એ વ્યક્તિનું ફરી લગ્ન થાય અને ફરી લગ્ન થઈને આવનાર પુત્ર વધુ પણ એટલું જ એ પ્રચારકને માન આપે. આ દર્શાવે છે પ્રચારકોના પરિવાર સાથેના સંબંધ. અમે બેઠા હતા અને થોડી વાર વાતો થતી હતી. ડૉક્ટર ભરતભાઈએ કહ્યું હતું, આમાં તો બધા બહુ સારા સારા પ્રસંગો જ લખ્યા હશે, થોડાક હસી મજાકના લખ્યા હશે કે નહીં? એટલે મને યાદ આવી ગયું એક હસી મજાકનો છેલ્લો પ્રસંગ કહીને મારી વાત પૂરી કરું. સુપાના વર્ગમાં હું પ્રબંધક, અને એ વખતે જ પહેલો વહેલો, ત્યારે પ્રૌઢ વર્ગ કહેતા, હવે વિશેષ વર્ગ થઈ છે. એ વિશેષ વર્ગમાં હું પ્રબંધક અને વસંતરાવજી પણ પ્રબંધક. વચ્ચે સત્રમાં એક અભ્યાસ કાલાંશ આવે એટલે એમાં બધા પુસ્તકો વાંચે ને અમે ત્યાં સુપાના એ ગુરુકુળના બગીચામાં બેઠા હતા. બાંકડા ઉપરથી જ્યારે એક સંકેત થયો કે આ કાલાંશ પૂરો થાય છે, એટલે બાંકડા ઉપરથી ઊભા થયા એટલે એમની ચડ્ડી નીચે ઉતરવા માંડી. ત્યારે સંઘમાં ગણવેશમાં ચડ્ડી હતી. એટલે એણે મને કહ્યું, જોયું સંઘ શિક્ષા વર્ગમાં મારું વજન કેટલું ઘટી ગયું? મેં એમના સામું જોઈને કહ્યું, તમે ચડ્ડી મારી પહેરી લીધી છે. ખીટી ઉપરથી ચડ્ડી પણ બીજાની લઈ લેતા એવા. અને આજે એક યાદ એ પણ દેવડાવીએ, આજની દિવસ એટલે તારીખ પ્રમાણે જેનો જન્મદિવસ છે, એક પ્રચારક જીવન તરીકે પણ જીવ્યા છે એવા ભારતના લોકપ્રિય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પણ આવું એક પ્રચારક અને ગૃહસ્થી વિશે પુસ્તક લખ્યું, જ્યોતિપુંજ. અને આ છે પ્રેરણાપુંજ. આપણા બધા માટે પ્રેરણા આપશે, ઉદ્દીપક બનશે, એક દીવાદાંડી રૂપ બનશે, એવી જ અભ્યર્થના. અસ્તુ. हम केशव के अनुयायी है, हमने तो बढ़ना सीखा है. આવા ડોક્ટર કેશવના કેટલાય અનુયાયીઓ નિષ્દિન સંપૂર્ણ ભારતમાં અને ભારત બહાર સંઘ કાર્યના વિસ્તાર માટે નિરંતર પ્રવાસ કરતા હોય છે. આજે જેમનું માર્ગદર્શન આપણને મળવાનું છે, તેમની વાણીમાં સંગઠનનો સંદેશ છે અને તેમના વિચારમાં રાષ્ટ્રીય ચિંતન છે. હું નિવેદન કરીશ, પૂર્વ સર કાર્યવાહ અખિલ ભારતીય કાર્યકારી મંડળના સદસ્ય માન્ય સુરેશજી સોની આપણને સૌને પાથે પ્રદાન કરે. साहित्य साधना ट्रस्ट के द्वारा संघ कार्य की नींव में खपकर संघ कार्य का गुजरात में जो वृक्ष का विकास हुआ, ऐसे एक 12 दिवंगत प्रचारकों के जीवन की स्मृतियों के संकलन के रूप में प्रेरणापुंज नाम से पुस्तक के विमोचन के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्र संघचालक डॉक्टर जयंती भाई जी भाड़ेसिया, प्रांत संघचालक भरत भाई, महानगर संघचालक महेश भाई, साहित्य साधना ट्रस्ट के अध्यक्ष रसिक भाई, दिवंगत प्रचारकों के परिवार से आए हुए परिवारजन, और जैसा कहा कि कहीं ना कहीं जिनको प्रत्यक्ष जिनका स्पर्श मिला या स्मृतियों के रूप में स्पर्श मिला, क्योंकि कई लोग ऐसे भी यहाँ होंगे कि शायद जिनके बारे में कहेगा उसमें किसी को किसी ने देखा भी ना हो. तो ऐसे सभी इस हाल में उपस्थित बहनों तथा भाइयों, ऐसा मेरे परिचय में कहा गया कि मेरा जन्म गुजरात में हुआ, लेकिन 8 साल का था तब से ही मध्य प्रदेश चला गया. तो संघ से संपर्क मेरा वहीं आया, कार्यक्षेत्र भी वही ज़्यादा रहा. अखिल भारतीय कार्यकारिणी में आने के बाद फिर थोड़ा गुजरात में आना प्रारंभ हुआ.
इसलिए बातचीत तो गुजराती में सहजता से कर लेता हूँ, लेकिन भाषण देना थोड़ा कठिन रहता है। और बीमार होने पे खिचड़ी अच्छी रहती है, लेकिन स्वस्थ आदमी को भी खिचड़ी खिलाना अच्छा नहीं, इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ। अब जिस पुस्तक का विमोचन हुआ है, पुस्तकों के बहुत विमोचन होते हैं, तो ऐसी पुस्तक का बनाना बड़ा कठिन होता है। कुछ कुछ साहित्य सृजन की गुजरात में कुछ पहले प्रयत्न हुए, जैसा उल्लेख किया गया। तो नरेंद्र भाई मोदी ने एक वकील साहब के ऊपर एक किताब लिखी थी, सेतुबंध नाम से। कुछ थोड़े अनुवाद हुए थे, श्रीकांत काटदरे ने पत्ररूप डॉक्टर जी का कुछ अनुवाद किया, नरेंद्र भाई ने ही पत्ररूप गुरु जी का एक अनुवाद किया था। लेकिन इतना एक साथ इतने सारे प्रचारकों का प्रचारकों का ये एक विशिष्ट ग्रंथ है। और थोड़ा इस प्रकार का पुस्तक बनाना कठिन भी रहता है, क्योंकि जैसा कहा कि जिनके बारे में लिखना है वो अपने बारे में कुछ बताते नहीं है। हमारे देश में कहते हैं कि भाई ऋषि का कुल और नदी का मूल जानने की ज्यादा कोशिश नहीं करना चाहिए। तो प्रचारक कैसा होना चाहिए, उसके मन में क्या भाव होना चाहिए, तो संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय गुरु जी कभी कभी अपने बौद्धिकों में अलेक्जेंडर पोप की एक कविता का एक छंद का उल्लेख किया करते थे। तो उस कविता के आखिरी छंद में वो लिखता है कि मैं दुनिया में आऊं तो कैसा रहूं और दुनिया छोड़ के जाऊं तो कैसा जाऊं। तो वो छंद था कि Thus let me live unseen, unknown. Thus unlamented let me die. Steal from the world and not a stone tell where I lie. मैं दुनिया में जीऊं तो अनसीन अननोन है, कोई जाने नहीं, और मरूं तो ऐसे मरूं कि किसी को खबर ना पड़े, चुपचाप चला जाऊं। और चूंकि वो पश्चिम का था तो मरने के बाद फिर वो कब्र बनती है तो कुछ स्मृति चिन्ह रहता है वहां, पत्थर। तो मेरे को कहाँ रखा गया है, तो नॉट ए स्टोन टेल वेयर आई लाई, मैं कहाँ पर हूं। और ये होने के कारण से थोड़ा एक कठिन रहता है ये। और ऐसा नहीं है कि ये केवल संघ प्रचारकों की विशेषता है, तो ये भारत की विशेषता रही है। दत्तोपंत ठेंगड़ी एक प्रसंग सुनाया करते थे, आपातकाल के अंदर अधिकांश नेता तो जेल में चले गए थे, कुछ लोग बाहर थे, और उन सब के बीच में संपर्क करने का विविध विचारधाराओं के एक संगठन, कांग्रेस के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, सबसे मिलना जुलना चलता रहता था। उसमें एक उस समय के बड़े नेता जिनका जन्म गुजरात में ही भावनगर में हुआ था, अशोक मेहता, तो उनके साथ कई बार संवाद के प्रसंग आए।
तो जैसे ये पुस्तक पढ़ोगे आप, जिसका विमोचन हुआ है, तो कई ऐसे मर्म को छूने वाले प्रसंग रहते हैं। तो ऐसे उनके, अशोक मेहता के जीवन के कई ऐसे कुछ घटना प्रसंग वो चर्चा में सुना है। तो एक दिन ठेंगड़ी जी ने कहा कि मेहता जी ये इतने प्रेरणादायी हैं कि तो आप अपनी एक ऑटोबायोग्राफी क्यों नहीं लिखते हैं? तो अशोक मेहता 1 मिनट ठेंगड़ी जी को देखते रहे और फिर उन्होंने प्रश्न किया कि मिस्टर ठेंगड़ी, यू आर ए आरएसएस प्रचारक? तो ठेंगड़ी जी ने कहा यस। तो बोले मुझे आश्चर्य लग रहा है कि तुम ऐसी सलाह दे रहे हो। और फिर अशोक मेहता ने पूछा कि अच्छा ठेंगड़ी ये बताओ कि उपनिषद किसने लिखे? न जाने कितने हजारों साल पहले जिन ग्रंथों को लिखा गया और आज तक दुनिया जिनसे मार्गदर्शन ले रही है, उसको लिखा किसने, इसे कोई नहीं जानता है। तो बोले अपनी तो परंपरा रही है कि दुनिया में आओ, अपना रोल करो और चुपचाप चले जाओ, कोई जाने कोई लिखे इसकी जरूरत नहीं है। और इसलिए बड़ा कठिन रहता है। लेकिन कहते नहीं कि मनुष्य का को निर्गुण जरा समझ में कम आता है। तत्व की बात करो तो ठीक है, लेकिन कुछ उसको दिखना चाहिए। इसलिए कितना भी कहो कि भगवान अव्यक्त है, लेकिन मन नहीं भरता उससे, इसलिए मूर्ति बनाते हैं। तो कुछ ना कुछ दिखना चाहिए। और इसलिए जब ऐसे कुछ, तो कोई उनकी प्रसिद्धि के लिए नहीं, वो तो अपनी जगह ठीक है। जो जयंती भाई ने कहा कि गलती से जो गए हैं उनमें से किसी का पुनर्जन्म होता और उसको स्मरण रहता अपने पूर्व जन्म का, तो लिखने वाले को कान पकड़ते जैसा कहा। लेकिन उनकी प्रशंसा या प्रसिद्धि के लिए नहीं, लेकिन वो जिस ध्येय के लिए जिए, जिन मूल्यों को लेकर जिए, जिस तरह की गुण संपदा अर्जन की, लेकिन उसका उपयोग स्वयं के लिए न कर कर देश और समाज के लिए करने का उन्होंने जो एक जीवन जिया, वो सबको मिले। इसलिए हेतु से यह सारा एक प्रयत्न चला। और इसलिए ये जो पुस्तक बनी है या इस तरह की पुस्तक बनती है, तो वो कोई साहित्यिक कृति नहीं होती है। क्योंकि जितना भी आप इसमें पढ़ेंगे तो शब्द तो व्यक्त करना है, तो शब्द लिखना ही पड़ते हैं। लेकिन हर संस्मरण के अंदर किसी न किसी के जीवन में कहीं ना कहीं जिस किसी प्रचारक के साथ उसका संबंध आया, उसने देख के सीखा होगा, कभी उनकी डांट से सीखा होगा, कभी किसी मार्ग पे कुछ पूछा होगा, उस पे मार्गदर्शन किया होगा, उससे सीखा होगा। तो एक तरह से जो हमको जीवन में जो अनुभव आए, उन अनुभवों का शब्द रूप ये पुस्तक है। और इसलिए मैंने कहा कि ये कोई साहित्यिक कृति नहीं है। ये जो अनुभव की जो भावधाराएं हैं, उन भावधाराओं को शब्दों के रूप में और इसके अंदर व्यक्त किया गया है। जिनके बारे में कहा गया है, तो हर एक का अपना प्रकार है। क्योंकि दुनिया में ऐसा कहते हैं कि भगवान की ये विशेषता है कि सृष्टि के अंदर कोई दूसरे का प्रतिरूप नहीं होता है। हाथ का अंगूठा है तो 8 अरब या 7 अरब जो भी दुनिया की जनसंख्या होगी, सेम वैसा एक भी नहीं मिलेगा। तो क्षमताएं अलग होंगी, स्वभाव अलग होंगे, प्रकृति अलग होगी। कोई अध्ययनशील होगा, कोई अध्ययन में बिल्कुल रुचि नहीं होगी। ये सब कुछ होने के बाद भी एक बात बड़ी कॉमन है कि
जिसके लिए जीवन दिया, उस ध्येय के बारे में एकता थी कि उसी के लिए। और इस नाते से जो परंपरा ये प्रारंभ हुई, तो जो एक ध्येय था कि विश्व के रंगमंच पर भारत अपने पुनर्उस स्थान के ऊपर स्थापित होना चाहिए, उस ध्येय को लेकर संघ प्रारंभ हुआ। उसका जो मूल समाज है हिंदू, वो निर्दोष होना चाहिए, वो संगठित होना चाहिए, सामर्थ्य संपन्न होना चाहिए, उसके आधार पर और देश विश्व में अपनी भूमिका करे। आज ऐसा नहीं है, वो होना चाहिए। इसकी जो तड़प थी, इसका जो एक वेदना थी मन के अंदर, वही संघ के रूप में फूटी। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार जी के ऊपर जो गीत है उसमें एक पंक्ति आती है कि संघ क्या है, तो उस पंक्ति में कवि ने लिखा कि हृदय की व्यथा संघ बन फूट निकली। जो अंदर की जो व्यथा थी वो संघ के रूप में फूट के बह चली। और जो प्रचारक परंपरा बनी, तो उसका भी जो मार्ग है वो डॉक्टर हेडगेवार ने कि ध्येय के साथ समरस होकर कार्य करते 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 उसी के साथ एक रूप बन गए। अटल जी ने 1950 में डॉक्टर हेडगेवार के ऊपर एक कविता लिखी थी। तो उसमें एक छोटा एक छंद आता है जिसमें उनके जीवन का वर्णन करते वो कहते हैं, कहीं पर हमको पहुंचना है तो हम किसी मार्ग के ऊपर चलते हैं। तो उन्होंने लिखा कि पथ पर चलते चलते ही वह राह बन गया, तिल तिल जलते जलते ही वह दाह बन गया, कैसा था वह भक्त स्वयं भगवान बन गया, कुंभकार की कृति होकर निर्माण बन गया। तो एक तरह से ये जो एक धारा उन्होंने की, तो जो बताया कि ऐसे कितने ही लोग उसमें निकले। अब यद्यपि ये ठीक है, प्रचारकों के संदर्भ में ये है, और विमोचन के लिए भी आपने एक प्रचारक को बुलाया, तो मेरे लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि खुद ही खुद की प्रशंसा करना तो और भी प्रॉब्लम होती है। कोई गृहस्थ इसका ये करता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये ठीक है, जयंती भाई जी से भी आपने बुलवा लिया, अच्छा हुआ। तो एक बार का प्रसंग है कि बाला साहब देवरस ने डॉक्टर हेडगेवार जी को पूछा कि, क्योंकि समाज में दो ही चीज दिखती थी उस समय, या तो गृहस्थ है या सन्यासी है, कोई मुनि है। तो बोले आपने विवाह भी नहीं किया, आपने कोई अर्थ उपार्जन का कुछ ये भी नहीं किया, तो ये कार्य करते हैं, आप सन्यास लेते तो अच्छा रहता है। तो डॉक्टर जी ने कहा कि मैंने इस विषय पे बहुत विचार किया, फिर लगा कि मैं सन्यास लूंगा तो लोग मेरी पूजा करेंगे लेकिन मेरे पीछे नहीं चलेंगे, अपना काम नहीं है ये। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो कार्य मैंने प्रारंभ किया है, अगर मैं एक गृहस्थ के रूप में रहते हुए अगर कर सकता तो ये और भी अच्छा होता, क्योंकि तब समाज को ये कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, ये सहज होता। लेकिन जितना बड़ा काम है और गृहस्थ जीवन की जो मर्यादा आती है, इसलिए यह आपद धर्म के रूप में ये न संन्यास न गृहस्थ, बीच का एक मार्ग निकाला है। ये कोई अंतिम आदर्श के रूप में नहीं था उनके मन के अंदर। मन में तो यही था कि भाई समाज जीवन में, क्योंकि हमारी परंपरा में तो कहते हैं कि 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो बाकी 3 तो आश्रित ही रहते हैं, करते धरते कुछ नहीं है। तो कुल मिला के ये जो गृहस्थ आश्रम है यही तीनों को संभालता है।
लेकिन जैसा कहा कि, और इसलिए अपनी यहाँ कहते हैं कि भाई संघ के अंदर प्रचारक या गृहस्थ इसका कोई भेद नहीं है, क्योंकि ये वृत्ति है। एक गृहस्थ भी किसी प्रचारक से अधिक समर्पित वृत्ति का हो सकता है। लेकिन जैसा कहा कि चूंकि एक संपूर्ण जीवन यही एक इस कार्य के अंदर लगाया, तो स्वाभाविक रूप से तो सभी, चाहे सामान्य कार्यकर्ता स्वयंसेवक हो या प्रचारक के रूप में जीवन जिया हुआ हो, कुल मिलाकर जैसे कहा कि जिस ध्येय की प्रेरणा के लिए निकले और जिस प्रकार का समाज का दृश्य खड़ा हो, उस नाते से जो जीवन लगाया, तो ऐसे सारे जीवन की स्मृतियां, उनके प्रसंग हम सबको जो है एक प्रेरणा देते हैं। भिन्न भिन्न प्रसंगों के वर्णन हैं, आप उसके अंदर देखेंगे। पर जिसको कभी कभी कहते हैं नहीं, कभी कभी हम बोलते हैं कि भाई कहीं भी रहो, कुछ भी करो, तो अपना कार्य करते समय जो अपना ध्येय है उसके अनुकूल समाज में वातावरण बनाना। तो अनंतराव काड़े के प्रसंगों में एक प्रसंग लिखा है कि वो पूना की जोशी कंपनी के अंदर इंजीनियर करके नौकरी में गए। उनको यहाँ एक खेड़ा के पास एक नदी है, उसके ऊपर पुल बनाने का उस कंपनी को ठेका मिला। उसके लिए अनंतराव यहाँ आए। ये घटना 1940 की है। उस संस्मरण में लिखा था कि 34 साल बाद 1974 के अंदर एक कार्यकर्ता के साथ अनंतराव जा रहे, तो एक अब्दुल नाम का एक वृद्ध मुसलमान आया और अनंतराव के पैर पड़ा और एकदम भावुक हो गया। तो क्यों, तो 1940 में जो पुल बनाने का काम अनंतराव के पास था, उस समय उस पुल के बनाने के अंदर एक कर्मचारी के रूप में उसने कार्य किया था। एक ठेके का काम मिला है, उस समय एक कोई कर्मचारी है, लेकिन किस तरह के मानवीय संबंध बनाए होंगे, किस तरह का भाव रहा होगा कि 34 वर्ष बीतने के बाद भी अनंतराव के प्रति वो एक श्रद्धा भाव बना रहा। तो जो कहते नहीं कि भाई व्यक्ति निर्माण है या समाज निर्माण, तो एक जीवन के प्रसंगों की कहते हैं। दादा अनंतराव को पूरी गीता कंठस्थ थी, लेकिन प्रदर्शन कभी नहीं करते थे। अध्यात्म का अधिष्ठान था, लेकिन वो व्यवहार में व्यक्त होता था। केशवराव देशमुख का जब देहावसान हुआ तो उनको कहा गया कि प्रांत प्रचारक के नाते, तो स्वास्थ्य की मेरी स्थिति, इसलिए उसके साथ न्याय नहीं हो सकता, किसी अन्य को करना। कुल मिला के हरेक के जीवन में हम देखेंगे तो यही एक हमको ध्यान में आता है। अब जैसा कहा कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि जब कभी पुस्तक बनती है ऐसी, तो स्वाभाविक रूप से एक जो शब्दावलियां भी दिव्य भव्य हैं, दधीची हैं, फलाने हैं, यही। पर जीवन है, जीवन में हास्य भी रहता है, विनोद भी रहता है, झगड़े भी होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जब पुस्तक पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि सब कुछ है,
तो यादवराव जोशी मजाक में कहा करते थे कि डॉक्टर हेडगेवार का आजकल वर्णन करते थे, ऐसा करते हैं कि बस कुछ मत पूछो, तुमको ऐसा लगता है कि वो ऐसे पारस पत्थर थे कि जिसके से लोहे को हाथ लगाया वो सोना बन गया। तो यादवराव, चूंकि यादवराव ऐसे थे संघ में जो बाड़ा साहब से भी पुराने थे, डॉक्टर हेडगेवार के घर में रहे थे, डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु, गुरुजी की मृत्यु उनकी आंखों के सामने हुई थी। तो बोले मैं संघ में सबसे ज्यादा जानता हूं क्या क्या हुआ। तो बोले तुमको लगता है कि डॉक्टर हेडगेवार पारस पत्थर थे, जिस लोहे को स्पर्श किया सोना बन गया? अरे बोले डॉक्टर हेडगेवार ने तो बहुत से लोगों का स्पर्श किया था, कुछ हमारे जैसे सोने रह गए, कितने कथीर निकल गए हम जानते हैं। तो एक जीवन में होता है ऐसा। तो जीवन एक समग्रता का जीवन है, इसलिए सब तरह के प्रसंग रहते हैं। अब चूंकि मुझे जितने इनमें उल्लेख किया गया उसमें से 8 लोगों से तो मुझे संपर्क का कोई ना कोई प्रसंग में अवसर मिला है। और नटवर सिंह जी वाघेला और चिपलूणकर जी का तो इसलिए कि वो पार्टी के अंदर उनको बीच में वहाँ दायित्व दिया था, वो वेद संदेश पत्रिका निकालते थे, और मोरो पंजे ने मेरे को स्वाध्याय मंडल को देखने के लिए कहा, तो मेरा आना जाना चलता रहता था। तो वसंतराव से ये सारे जितने प्रचारकों के वर्णन में उसमें वसंतराव एक मजेदार टिपिकल हैं। तो एक प्रसंग मुझे याद है कि यहाँ मनमोहन प्रांत प्रचारक थे और सारंगपुर में जो इनका स्वामीनारायण इनका केंद्र है, वहाँ पर गुजरात के सारे प्रचारकों का 4 दिन का वर्ग था। मुझे उसमें रहना था, 4 दिन हो गए, आखिरी दिन समापन था, समापन के पहले प्रश्नोत्तर। अब 4 दिन में इतना सुन चुके थे कि जब कहा कि प्रश्नोत्तर तो कोई प्रश्न ही ना पूछे। थोड़ी देर हो गई तो फिर मैंने कहा कि अब क्या करें, फिर समापन चालू करें? तो वसंतराव चिपलूणकर खड़े हो गए, बोले कोई नहीं पूछता तो मैं पूछता हूं। और प्रश्न पूछा उनने कि मेडिकल साइंस में लोग कहते हैं कि दिल का बड़ा होना ये ठीक नहीं है जीवन के लिए, धोखा रहता है जीवन के लिए। हार्ट एनलार्ज हो जाए तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि गड़बड़ है ये कुछ। तो बोले सारी दुनिया के महापुरुष ये क्यों कहते हैं कि दिल बड़ा करो, दिल बड़ा करो? अब इसका उत्तर वो जानते नहीं हो, ऐसा नहीं है। पर एक विशेषता थी उनकी, इसमें एक संस्मरण लिखा है कि भूल जाते थे और हिसाब याद नहीं रहता था, और प्रचारक को एक व्यय पत्रक देना पड़ता है। अब पैसे लिए और ये इतने पैसे का ये लिया, लेकिन हर महीने में एक अच्छी खासी राशि रहती थी जिसका इसका कहाँ उपयोग हुआ नहीं, तो उसके आगे जीके लिखते थे, जीके। कई दिन हो गए तो व्यवस्था प्रमुख वकील साहब के पास गया कि ये वसंतराव का ये इतना बड़ा राशि जो है, ये जीके क्या चीज है जीके? तो वकील साहब ने पूछा वसंतराव ये जीके क्या है? बोले गॉड नोस। हिसाब पूरा, बीच में जितना गैप है जीके, और दूसरे का भी समाधान करते थे। एक प्रचारक और भी अच्छा है, वो बेचारा कार्यकर्ता हिसाब करते हैं 25 पैसे कम पड़ गए, अब मिल नहीं रहा हिसाब, परेशान, वो गीत गाता जा रहा, निर्माणों के पावन युग में 25 पैसा, निर्माणों के पावन युग में 25 पैसा। 5-7 बार हो गया तो चिपलूणकर जी गए, जेब से 25 पैसे निकाल के हाथ में रखे, ये ले 25 पैसे, हिसाब मिल गया, अब गीत पूरा कर। वो वेद संदेश का काम देखते थे, तो एक जगह अब उनको ग्राहक बनाना थे, तो संघ में प्रतिज्ञा करते हैं ना, तो उसमें एक वाक्य आता है आखिर में, जो प्रतिज्ञा ले लेता है कि, तो अंत में फिर वो कहता है कि और इस व्रत का मैं आजन्म पालन करूंगा।
तो ये आजन्म पालन के दो अर्थ करते हैं। एक, जन्म लिया है तो मृत्यु होगी, तो जब तक जिंदा है तब तक आजन्म करेंगे। और दूसरा, हिंदू है तो जब तक जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं होते तब तक जन्म होता रहेगा। तो जब तक जन्म लेते रहेंगे तब तक करेंगे, एक दूसरा अर्थ भी होता है। तो लाक्षणिक ढंग से वो सारे कार्यकर्ता इकट्ठे थे, वसंतराव ने वो लवाजम लेने के लिए चालू किया। उन्होंने कहा, देखिए वेद संदेश का जो 1 वर्ष का ग्राहक बनेगा उसको अगला 1 वर्ष मुफ्त में मिलेगा, जो 3 वर्ष का ग्राहक बनेगा उसको अगले 3 साल मुफ्त मिलेगा, और जो आजीवन ग्राहक बनेगा उसको अगले जन्म के अंदर मुफ्त मिलेगा। तो कई लोग आजीवन ग्राहक बन गए। कभी कभी होता है जीवन में, भाई बोले ठोकर खा के सीखता है, पर कितनी बार ठोकर खाना। एक उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता ने एक गीत बनाया था, गिर कर उठना उठ कर चलना यह क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता कभी जीत या हार का। तो खूब गाते थे। तो वसंतराव बोले कि एक बार केले पर फिसल के गिरा, दूसरी बार ठोकर खा के गिरा, तीसरी बार और गिरेगा, देख के नहीं चल सकता क्या? और फिर कहा कि बार बार अगर गिरता है तो संघ का क्या काम है फिर? यानी हास्य विनोद के अंदर भी जो एक दिशा रहती है, और इसलिए ये जो अनेक वैशिष्ट रहते हैं, कई प्रसंगों में से जो कुछ सुनने को मिलता है, नरेंद्र भाई मोदी ने जो गृहस्थ और यानी दिवंगत का नहीं था, उसमें जो भी गुजरात के अंदर जिन भी कार्यकर्ताओं ने और कार्य को दिशा दी, प्रेरणा दी, उनका जो एक छोटा छोटा संकलन करके ज्योतिपुंज निकाला था, उसमें जो वसंतराव के ऊपर लेख लिखा था, उस समय तो थे वसंतराव जीवित, उसका जो शीर्षक था वो शीर्षक था बिना पतझड़ का पत्ता। हर वृक्ष के जीवन के अंदर ये आता है कि उतार आता है, वसंत भी आता है, पतझड़ भी आता है, उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं। जब जीवन में कुछ उत्थान होता है तो आनंद होता है, और नहीं तो दुख होता है। लेकिन वसंतराव एक ऐसे थे कि जिनके जीवन में पतझड़ नहीं आया कभी। तो एक दिन नरेंद्र भाई ने उनको पूछा कि वसंतराव, इसका रहस्य क्या है कि आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं? तो जो वाक्य उन्होंने कहा वो सभी कार्यकर्ताओं के लिए अनंत प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा, नरेंद्र भाई, मैं खुश इसलिए रहता हूँ कि मेरी किसी से कोई अपेक्षा नहीं है और मेरी किसी से कोई फरियाद नहीं है। इस दुनिया के अंदर ये 2 ही शब्दों के कारण सारी गड़बड़ चलती है। या तो जिंदगी में अपेक्षा होती है, वो पूरी नहीं होती है तो दुख होता है, या हम जो चाहते हो नहीं हुआ तो किसी के प्रति कोई ना कोई फरियाद रहती है। तो एक दृष्टि से कार्य करते समय, बाकी करते समय किस प्रकार का ये करना, नटवर सिंह जी तो इस एक तरह से कहना चाहिए कि एक वटवृक्ष जैसे ही रहे, एक प्रारंभिक प्रचारक और दीर्घ जीवन के अंदर। एक संस्मरण में है, यहाँ संकल्प शिविर जब लगा था, कुछ नए स्वयंसेवक आए होंगे, अनुशासित जीवन बड़ा थोड़ा कठिन लगता है। तो तंबू में गए और उन्होंने इतना ही कहा कि जब पाठशाला जाते हैं तो सरस्वती का मंदिर है, वहाँ एक शिस्त का हम पालन करते हैं, उसमें से विद्या मिलती है हमको। ये संघ शिविर में आए तो ये परमात्मा का मंदिर है, यहाँ की शिस्त के पालन करेंगे, इसमें से हमको तो शब्द कहे, लेकिन शब्दों के पीछे का जो एक जीवन है, उस जीवन के कारण कई ऐसे कार्यकर्ता की जीवन में
आवश्यकताएं की कोई सीमा नहीं रहती है। इसलिए जीवन चलना चाहिए, आवश्यकता की पूर्ति होना चाहिए, लेकिन इतना ना हो जाए कि फिर संघ कार्य के लिए समय ही न बचे। तो ऐसी उनकी जो एक अनेकों दिशा देने की, और जो सबसे बड़ा वैशिष्ट्य इन सब लोगों के जीवन में दिखाई देता है कि तपस्या के अंदर, कार्य के अंदर, हर चीज के अंदर श्रेष्ठ होने के बाद भी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कोई छोटा भी उस स्थान के ऊपर है तो आने वाले लोग भी उसका ठीक से पालन करें, उस नाते से उनका उतने प्रकार का आदर का, उस प्रकार का सारा उन लोगों का व्यवहार रहता था। हर एक ने कुछ न कुछ अपने प्रसंगों से किया। पंकज भाई सेवा प्रमुख थे तो जनजाति क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से तकलीफें रहती हैं बहुत, और विशेष रूप से जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद के जो कर्म होते हैं सामाजिक मान्यताओं के अनुसार, और उनकी जो आर्थिक स्थितियां रहती है, वो बहुत, जो गया उसका तो दुख रहता है, लेकिन बाद में किया हुआ ये और अधिक। तो एक सहज दिशा दी उन्होंने कि अगर समाज एक परिवार है तो गांव के अंदर जब कभी किसी के यहाँ होगा तो गांव के शेष घर के लोग 5 रुपया उसके घर में देंगे अपने परिवार का। ऐसा कहते हैं कि ये एक धीरे 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 एक वायुमंडल बनता चला गया, और एक तरह से एक अच्छी समाज के अंदर एक पद्धति, उसका समाज जीवन के अंदर भी विकास हुआ, और ऐसे न जाने कितने परिवारों के अंदर भी इस प्रकार का जो, तो एक दृष्टि से ये जो समाजाभिमुखता है इन सब संदर्भों के अंदर और हमको ये मिलेगा। नाथा भाई झगड़ा को कभी मैं मिला नहीं, और हिंदी में झगड़ा का मतलब होता लड़ना, लेकिन नाथा भाई जीवन भर उल्टा करते रहे, जोड़ना। पर मुझे स्मरण है एक बार मैं कहीं इधर आया हुआ था अहमदाबाद में, तो गुजराती समाचार पत्र देख रहा था, उसमें उस समय कोई भाजपा की मीटिंग के अंदर ये गए होंगे, तो अखबारों का विशेषता रहती है कि शीर्षक ऐसा देंगे जिससे कुछ सस्पेंस थोड़ा जागृत हो। तो शीर्षक इतना ही दिया था, भाजपा की बैठक में झगड़ा। जब न्यूज अंदर पूरी पढ़ी तो मीटिंग थी, उसमें नाथा भाई झगड़ा गए थे, लेकिन ऊपर खाली पढ़ो तो लगे ना भाजपा की बैठक में झगड़ा। तो जैसे कहा कि वो नाम झगड़ा था लेकिन उल्टा करते रहे, और इसलिए कहते हैं कि जब ऐसे लोग दुनिया में आते हैं तो केवल खुद ही रोते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो हजारों रोते हैं। और इस नाते से एक तरह से सारी जो सूची में हर एक के बारे में नरेंद्र भाई पंचासर के साथ तो, क्योंकि वो भी सह प्रांत प्रचारक बने तो बैठकों में हम लोग मिलते भी रहते थे। तो संपर्क विभाग जब संघ में प्रारंभ हुआ तो बहुत से स्वयंसेवकों के समझ में नहीं आता था कि ये क्या किया है, क्योंकि संघ का काम ही संपर्क करना है, तो संघ चला 30 दिन से ही संपर्क करो। तो जो काम सारे संघ का है उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाने की क्या जरूरत है। तो ये संपर्क विभाग क्या है समझाना बड़ा कठिन काम था, लेकिन संपर्क प्रमुख बन गए तो यहाँ रमेश पप्पा बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ बताना पड़ता है। तो एक बैठक नरेंद्र भाई पंचासरा ले रहे थे, संपर्क विभाग समझाना। तो प्रारंभ में उन्हें एक उर्दू का एक शेर कहा कि कभी कभी हम अपने दिल को यूं बहलाया करते हैं, जो खुद नहीं समझते वो औरों को समझाया करते हैं। तो संघ में बहुत चलता है ऐसा है, मतलब ये नहीं जो कुल मिला करके, क्योंकि एक जगह आपने बिठाया तो कुछ ना कुछ बताना ही है। तो और प्रचारक जीवन है, आज यहाँ है वहाँ है कल है, यहाँ खाना वहाँ खाना। तो नरेंद्र भाई को ऐसा कुछ नहीं था कि भाई बिल्कुल एकदम पक्का संस्कृत निष्ठ है, तो उर्दू शेर शायरी भी याद रखते थे थोड़ी सी। तो
प्रचारक जीवन के बारे में तो एक पुराना शेर है किसी का, खुदा खाना बदोशों की करे खुद खान सामानी, नया दरबा नया रोज़ा नया दाना नया पानी। आज यहाँ है कल वहाँ है, आज ये खाया कल वो खाया। वो ये कौन करता है? वो भगवान ही करता है। तो कहने का मतलब है कि हर तरह की छटा आपको इसके अंदर मिलेगी। बाकी शांति भाई हैं, ये सब तो एक तरह से जिसको कहते हैं कि जीवन के अंत तक बालवत रहना है। आदमी के साथ बड़ी समस्या रहती है कि थोड़ा बड़ा होने के बाद जरा गंभीर ज़्यादा हो जाता है। तो लेकिन एक सरल हृदय है, एक सहज, जब भी कार्यालय में आओ तो एक तरह से ऐसे अनेकानेक और जो जीवन है कुल मिलाकर हम सब कुछ सारा ये संस्मरणों का ये देखेंगे तो एक, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि एक जो वैशिष्ट्य था सभी का, और जितने भी संस्मरण पढ़ेंगे, जिन जिन ने भी अपनी अनुभूतियों को शब्द दिए हैं, तो ध्यान में आता है कि हरेक को कुछ न कुछ गढ़ा है। तो इन सभी के बारे में जिनका उल्लेख इस प्रेरणापुंज पुस्तक में हुआ, इतना ही कह सकते हैं। उनके लिए कोई नाम हो सकता अगर तो यादवराव जी जोशी जब गए तब कर्नाटक में उनके समग्र जीवन की जो अनुभव की यात्रा थी उसको समेटते हुए एक उनके जीवन के बारे में पता लगे, उस नाते से एक पुस्तक उस समय बनाई गई। उस पुस्तक का शीर्षक था जनमन शिल्पी। क्या थे? तो जन, उसका जो मन है उसका, जैसे शिल्पकार जो रहता है वो एक अनगढ़ पत्थर के अंदर से एक मूर्ति बना देता है जिसके सामने लाखों लोग सिर झुकाते रहते हैं। ये सारे प्रचारक लोग इस प्रकार के थे कि जिनने हम जा रहे जैसे न जाने कितने अनगढ़ पत्थरों को उरेद कर, हमारे कोणों को काट कर, हमारे अंदर की जो एक वैशिष्ट था, जो आकृति निराकृति जैसी थी, दिखती नहीं थी, उसको उकेर करके हम सबके सामने लाया। और इसलिए हजारों हजार कार्यकर्ताओं के हृदय स्थल को और जो छुआ, ऐसे सारे प्रचारकों का ये। लेकिन यह करते समय इसी बात का हम सबको स्मरण रखना है कि इन सब ने एक ध्येय के लिए अपना जीवन जिया। वो जो एक ध्येय की और अग्नि उनके हृदय के अंदर देह की, उसको हमारे हृदय के अंदर भी जागृत करने का उन्होंने प्रयत्न किया। लेकिन ये सब लोग जिस स्वप्न को लेकर निकले, अपने जीवन को गलाया खपाया, लेकिन उस स्वप्न को अपनी आंखों के सामने साकार होता हुआ नहीं देख सके। और इस नाते से वह जो अधूरा स्वप्न है वो पूरा होने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। और एक दृष्टि से उनके प्रति हमारी श्रद्धा या उनके प्रति हमारे भाव का जो निवेदन है, उसकी सार्थकता इसी के अंदर है कि उस स्वप्न को साकार करने की दिशा के अंदर आगे बढ़ सकें। आज संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने वाला है। 100 साल पूरे हो जाएंगे। डॉक्टर हेडगेवार ने तो कल्पना नहीं की थी, उन्होंने तो यही सोचा था कि इन्हीं आंखों से, इसी देह से, याची देही याची डोड़ा।
लेकिन और भी न जाने कितने जो है इन्हीं आंखों से देखने की आशा मन में लिए हुए चले गए। अब आने वाले समय के अंदर, इस शताब्दी वर्ष के अंदर, ये जो एक संपूर्ण समाज के सामने लक्ष्य रखा है कि शीघ्रातिशीघ्र जिन स्वप्नों के लिए सबने जीवन दिया उस दिशा के अंदर आगे बढ़ने की दिशा में कूच चले, इसमें सभी की सामर्थ्य लगे। आज देश के 6.5 लाख गांव में लगभग 83,000 शाखाएं हैं। आने वाले समय के अंदर 1 लाख से ऊपर अगर शाखाएं होती हैं तो एक देशव्यापी एक जाल खड़ा होगा। और संगठन का जाल का विस्तार होने से भी पूर्तता नहीं है, क्योंकि जिस मूल उद्देश्य को लेकर के संघ चला था, एक निर्दोष हिंदू समाज, एक संगठित हिंदू समाज, एक सच्चरित्र हिंदू समाज, एक सशक्त और समृद्ध हिंदू समाज, और उसके आधार पर उस प्रकार का हमारा देश जो विश्व में भूमिका करेगा। एक शब्द प्रयोग करते थे कि संघ कार्य की पूर्ति कब पूरी होगी, तो कहते थे कि जिस दिन संघ और समाज एक रूप हो जाएगा उस दिन संघ का काम पूरा हो जाएगा। और संघ का और समाज का एक रूप होना क्या है? तो यदि संघ के अंदर अनुशासन है तो समाज के हर वर्ग के अंदर, हर घर के अंदर, हर संस्था के अंदर, हर व्यवहार के अंदर अनुशासन झलकना चाहिए। संघ अगर व्यवस्था का प्रतीक है तो समाज जीवन के हर प्रसंग के अंदर व्यवस्था अभिव्यक्त होनी चाहिए। संघ अगर निस्वार्थता सिखा रहा है, अपने लाभ का विचार न कर देश समाज के लिए काम करना, तो ये संपूर्ण समाज का सहज स्वभाव बन जाए, उस दिशा में बढ़ने की जरूरत है। संघ अगर हिंदू समाज की एकता के लिए चला तो भाषा के नाम पर या जाति के नाम पर ऊंच नीच अस्पृश्यता से लेकर के तो समाज का वो चित्र एक समरस समाज के लिए, हिंदुत्व के आधार पर देश खड़ा करना है तो अपने इस स्वबोध के लिए, और देश का जो प्रत्येक नागरिक है वह इस भाव को लेकर के आगे बढ़े, इस पर मूल रूप से ये जो अंतर है इसको सोचने की आवश्यकता है। 1-2 बातें कह के समाप्त करूंगा। एक प्रसंग थोड़ा पुराना है, लेकिन 90 के दशक में जब पहली बार एशियाड हुआ था, उस एशियाड का जो लोगो था वो अप्पू हाथी का, एक ऑस्ट्रेलिया की युवती वो एशियाड देखने के लिए आई थी। एशियाड देखने के बाद उसको वापस जाना था, तो बंगाल का एक कलकत्ता का परिवार कभी ऑस्ट्रेलिया गएगा, उनका आपस में संपर्क था। तो इस युवती ने सोचा कि जाने के पहले उस परिवार को मिलते हुए जाएं, तो इसलिए वो कलकत्ता गई। बात थोड़ी पुरानी है, तो उस जमाने में विदेश यात्रा ये बड़ा ऊंचा माना जाता था। आप सबको भी स्मरण होगा, कोई आदमी इंग्लैंड वगैरह कुछ घूम के आता था तो फिर अखबार में विज्ञापन छपता था कि फला फला सज्जन 9 दिन की इंग्लैंड की यात्रा करके लौट के आए हैं। अर्जुन का रथ जैसे जमीन के ऊपर चलता, ऐसा कुछ उस जमाने में माहौल था। तो वो कलकत्ता में उस मोहल्ले में उस परिवार के घर में रही। तो एक दिन उसके सोचा कि विदेशी युवती अपनी आए, तो मोहल्ले के कुछ लोगों को अपने घर बुलाया चाय पान के लिए, परिचय के लिए। चाय पान हुआ, परिचय हुआ, बातचीत चालू हुई। तो मोहल्ले के एक आदमी ने उस युवती को पूछा कि आपको कलकत्ता कैसा लगा? तो युवती ने कहा कि अब कोई अपने घर में आ गया, ऐसे थोड़ी क्या गड़बड़ है। तो नहीं, बोले अच्छा है। तो नहीं, कोई ऐसी बात आपको ठीक नहीं लगी हो? तो बोले नहीं, ठीक है सब। फिर उसने पूछा तो 2-3 बार जब वो पीछे ही पड़ गया कि कोई ऐसी बात आपको लगी हो। तो फिर अंत में उस युवती ने कहा कि कलकत्ता है तो बहुत बड़ा, कि बहुत ही गंदा है। जहाँ जहाँ वहाँ कूड़े के ढेर पड़े हैं, अपने घर का कचरा निकालते हैं सामने डालते हैं, इधर से उधर कचरा ही कचरा दिखाई देता है।
तो वो जो मोहल्ले का आदमी था उसको लगा ये बाहर से मैम आई है, इसको पता नहीं है। तो उसने कहा कि मैडम आप जानती हैं कलकत्ता में 1 करोड़ लोग रहते हैं। उसका कहना था इतनी बड़ी आबादी है तो गंदगी स्वाभाविक है। उसने जब कहा कि मैम आप जानती हैं कलकत्ता में 1 करोड़ लोग हैं, तो उस युवती ने तपाक से प्रति प्रश्न किया कि श्रीमान जी कलकत्ता को साफ करने के लिए और कितने लोगों की जरूरत है आपको? मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा जो संघ जिस बात को लेकर चला या जिसके लिए इन प्रचारकों ने जीवन दिया वो था कि समाज का ये घटक वैसा हुआ है कि नहीं है, उस दिशा के अंदर आगे कुछ प्रारंभ हुआ है। धीरे धीरे नीति बदल रही है। भारत का नाम, भारत के बारे में धारणा, भारत के विचार के प्रति आस्था आज की समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं ये कर सकता है। यह एक भाव संपूर्ण जगत में जब हो रहा है, ऐसे ही संक्रमण काल के अंदर, संघ की शताब्दी के अंदर, संघ के सभी नए पुराने सभी लोग और एक दृष्टि से इस ध्येय यात्रा को और तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए अपना सामर्थ्य, अपना जीवन, इसके लिए हम अपनी सामर्थ्य लगाएं। और ये सारे प्रचारक जिनके जीवन के संदर्भ में ये पुस्तक निकली है, जिन्होंने अपना जीवन इस भारत माता की वंदना के लिए, अर्चना के लिए, उपासना के लिए समर्पित किया, वह हमारे हृदय को पुनः स्पर्श करते हुए इस मार्ग पर आगे बढ़ने की और इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने की प्रेरणा दे। यही मैं समझता हूँ कि आज के इस पुस्तक समारोह की सच्ची फलश्रुति होगी और जिनके बारे में लिखा गया है उनकी भी आत्मा को उसमें से समाधान होगा। वो अपनी आँख से तो देख नहीं पाए, लेकिन हम आशा करें कि हम सब लोगों की आँखों से वे लोग भारत के उस दृश्य को देख सके, ऐसा करने की परमात्मा हमें प्रेरणा दें। इतना ही निवेदन करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।